emergency support worth 16 lakh crore rupees and robust fertilizer subsidies of rupees 14 lakh crore rupees. A major rise in the agriculture budget from 22,000 crores in 2014 to 1.27 lakh crores, an increase of about 500%. Each of these achievements reveal India's resolution to uplift its farmers and turning its vision into reality. Carrying forward this resolution, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has launched two historic initiatives, namely the Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana and the Dalhan Atmanirbharta Mission, aimed at transforming agriculture, thus fulfilling the vision of a self-reliant nation. The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi has emerged as a landmark initiative bringing hope, stability and dignity to millions of farming families. Under this scheme, farmers receive 6,000 rupees annually in 3 equal installments, which is transferred directly into their bank accounts. So far, more than 3,91,000 crore rupees have been transferred to eligible farmers across the country. ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ PM ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. PM ಕಿಸಾನ್ திட்டம் கொடுத்தது விவசாயிகளுக்கு ரொம்பவும் உதவிகரமா இருக்கு. அந்த உதவிகரமா இருக்குன்னு அனுபவபூர்வமா சொல்லும்போது நான் விதை நெல் வாங்கும்போதும் இல்ல இடுபொருள் வாங்கும்போதும் கரெக்டான நேரத்துக்கு அந்த PM ಕಿಸಾன் திட்டம் துட்டு கிடைக்குது. Recently, severe floods devastated Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and Uttarakhand. Honorable Prime Minister visited the flood-affected areas and assessed the situation. With the compassionate and decisive leadership of Honorable Prime Minister, this calamity has been handled with courage to mitigate the losses and support the people in these states. For more than 35 lakh farmers in these 4 states, more than 710 crore rupees was transferred at the time of need as the 21st installment of PM Kisan. जिन्ने भी पैसे प्रधानमंत्री निधि योजना के आए ने वो सारे मैं खेती बाड़ी के लिए ही वरतों कीते आ. Today, as the nation moves forward, the Honorable Prime Minister has transferred more than 18,000 crore rupees directly into the bank accounts of above 9 crore farmers as the 21st installment of PM Kisan Samman Nidhi. Progressive farmers empowered India. Thank you, sir. Thank you for releasing the. तो 18,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की जो रकम है वो किसानों को भेजी गई है और किसानों के खाते में सीधी ये राशि जाती है, सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचते हैं। कोयम्बटूर से कार्यक्रम जहां से तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम कोयम्बटूर में। और हरियाणा में भी ये कार्यक्रम पलवल में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद हैं और अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये 21वीं किस्त जो है वो जारी कर दी गई है। एक क्लिक और डीबीटी के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो भेज दी गई है किसानों के खाते में। 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त जो है वो भेजी गई है। किसानों के लिए ये योजना पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत किसानों की आर्थिक मदद की जाती है और समय समय पर ये किस्तें जो हैं वो जारी की जाती हैं। साल भर में 3 बार इस तरह की किस्तें जारी होती हैं। 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जो है वो किसानों के खातों में भेजी जाती है। ऐसे समय पर भेजी जाती है जब किसानों को उसकी मदद की बहुत ज़रूरत भी होती है, क्योंकि फसल कटाई के बाद जब नई फसल को बीजने का समय होता है तो तब ये जो राशि है वो किसानों को भेजी जाती है। पीएम तमिलनाडु के दौरे पर और यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, कुछ किसानों से भी मिल रहे हैं, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं और किसानों के खातों में सीधा ये किस्त जो है वो भेजी गई है। ये सीधा ये राशि 2-2 हज़ार रुपये
की रकम जो है वो भेजी गई है पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर। तो इस दिन का इंतजार रहता है किसानों को जब उन्हें किसान सम्मान निधि मिलनी होती है। और ये किस्त किसानों के खातों में सीधा ये पैसा जो है वो भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किस्त जारी की गई। 21वीं किस्त इस किसान सम्मान निधि की 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में ये पैसा पहुंचा है। और अब कुछ किसानों से मिल रहे हैं, उन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज किसानों के लिए बेहद खास दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के बैंक खातों में 21वीं किस्त जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि की भेजी है और ये किस्त जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि तमिलनाडु दौरे पर है, वहीं पर एक राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम जिसमें शिरकत कर रहे हैं और यहीं से ये किस्तें जो है वो जारी की गई हैं। किसानों के खातों में सीधा बैंक खातों में ये पैसा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो लोगों को बेसब्री से इंतजार था कब वो ये बटन दबेगा, कब उनके खातों में पैसा पहुंचना शुरू होगा। और अब किसानों के खातों में सीधा पैसा जो है वो भेजा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की ये किस्त जारी की गई। इस योजना की ये किस्त जो है वो 21वीं किस्त है जिससे 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ मिला है। आज की अगर बात करें तो आज विशेष रूप से 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को ये लाभ दिया गया है। देश भर के किसानों के खातों में ये राशि पहुंचाई गई है। किसानों के बीच पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के किसानों के बीच हैं। ऐसा ही कार्यक्रम हरियाणा में भी राज्य स्तरीय हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी शिरकत कर रहे हैं और यहाँ वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी बताया था कि अब से कुछ ही देर में ये किस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। और वो अब से कुछ मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किस्त जो है वो जारी की। किसानों के सीधे खाते में ये पैसा जो है वो पहुंचाया गया है। कोयम्बटूर से लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और पलवल में सीएम नायब सैनी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी एल मुरुगन जी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर के रामास्वामी जी, अलग अलग कृषि संगठनों से आए गणमान्य सभी महानुभाव, अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों और देश भर में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहां से उनको भी वणक्कम कहता हूं, नमस्कार कहता हूं। और सबसे पहले मैं आपकी भी और देश भर में जमा हुए मेरे किसान भाई बहनों की भी क्षमा मांगता हूं। मुझे आने में करीब करीब 1 घंटा देरी हो गई क्योंकि मैं आज पुट्टपर्ती में सत्य साईं बाबा के कार्यक्रम में था, लेकिन वहां कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल गया तो मुझे आने में विलंब हुआ। आप सबको जो असुविधा हुई, देश भर में मैं देख रहा हूं काफी लोग बैठे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। மேடையில் வீற்றிருக்கும் தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவர்களே, மத்திய அமைச்சரவையின் என்னுடைய சகாவான எல் முருகன் அவர்களே, தமிழ்நாட்டின் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் முனைவர் கே ராமசாமி அவர்களே, பல்வேறு விவசாய அமைப்புகளை சார்ந்த மதிப்பிற்குரிய மக்களே, வந்திருக்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகளே, சகோதர சகோதரிகளே, வணக்கம். வணக்கம் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, இங்கு டிஜிட்டல் வழியாக
பல்வேறு விவசாயிகள், நாட்டு மக்கள் எல்லோரும் இதை கண்டுகொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் என்னுடைய நல்வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். மேலும் உரையை துவங்குவதற்கு முன்பாக உங்கள் அனைவரிடமும் சரி, நாட்டு மக்களிடமும் சரி, குறிப்பாக விவசாயிகளிடம் நான் என்னுடைய மன்னிப்பை கோர விரும்புகின்றேன். தவிர்க்க இயலாத ஒரு நிலையாக புட்டபர்த்தியிலே எனக்கு சற்று கால தாமதம் ஆகியபடியால் இங்கே உங்களை தாமசிக்க வேண்டி வந்திருக்கிறது. அதற்காகவும் உங்கள் மன்னிப்பினை நான் கோருகின்றேன். मैं जब पांडियन जी का भाषण सुन रहा था, मुझे लग रहा था अच्छा होता किसी ने मुझे बचपन में तमिल सिखाई होती तो मैं आज उस स्पीच का इतना आनंद ले सकता था, लेकिन मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन जो कुछ मैं समझ पा रहा था, वो जलीकुट्टे की बात कर रहे थे, वे कोविड के समय जो कठिनाइयां हुई उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैंने रवि जी को कहा है कि मुझे पांडियन जी के भाषण को हिंदी या अंग्रेजी में तैयार करके भेजे, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। लेकिन मैं उनकी भावना को पूरी तरह आत्मसात कर रहा था, मैं अनुभव कर रहा था, और मेरे लिए बहुत अच्छा पल था ये। நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை உங்கள் முன்பாக பகிர விரும்புகின்றேன். பாண்டியன் அவர்கள் மிக அருமையாக உரையாற்றினார்கள். 10வது கைத்தட்டல். மேலும் அவருடைய உரையை தமிழிலே இருந்ததால் என்னால் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. சிறு வயதில் நான் தமிழையும் கற்றிருக்கலாமே என்று அடிக்கடி நினைப்பதுண்டு. இன்று பாண்டியன் அவர்களுடைய உணர்வுபூர்வமான, உணர்வுமயமான இந்த உரை, அந்த முழுமையாக அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் அந்த உணர்வு என்னை தொட்டது. மாண்புமிகு ஆளுநர் ரவி ஐயா அவர்களிடம் நான் விண்ணப்பித்திருக்கிறேன். பாண்டியன் அவர்கள் ஐயாவுடைய உரையை அதனை ஹிந்தி மொழியிலே அல்லது ஆங்கிலத்திலே மொழியாக்கம் செய்து எனக்கு தெரிவித்துக் கொடுக்குமாறு அவரிடம் விண்ணப்பித்திருக்கிறேன். जब मैं यहां मंच में आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। நான் இங்கே மேடையிலே வந்தபோது பல விவசாய வேளாண் குடிமக்கள் தங்களுடைய மேல் துண்டை அவர்கள் சுழற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள். பீகாருடைய காற்று இங்கேயும் வீசுகிறதோ என்று என் மனம் அவாவியது. मेरे किसान भाई बहनों, कोयम्बटूर की इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं मरुद मलई के भगवान मुरुगन को प्रणाम करता हूं। कोयम्बटूर कल्चर, कंपैशन और क्रिएटिविटी की भूमि है। ये शहर अपनी दक्षिण भारत की उद्यम शक्ति का पावर सेंटर है। கோயமுத்தூரின் இந்த புனிதமான மண்ணிலே மருதமலையில் குடிகொண்டிருக்கும் ஐயன் முருகனை நான் முதன்மையாக தலை வணங்குகின்றேன். கோயம்புத்தூர் என்பது கலாச்சாரம், கனிவு, கவின் படைப்பு திறன் ஆகியவற்றை தனக்கு சொந்தமாக்கிக் கொண்ட பூமி. இந்த நகரமானது தென் பாரதத்தின் தொழில் முனைவு ஆற்றலின் சக்தி பீடம். यहां का टेक्सटाइल सेक्टर देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और अब तो कोयम्बटूर एक और मायने में विशेष बन गया है। यहां के भूतपूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति के तौर पर
हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। இங்கே இருக்கும் ஜவுளித்துறை தேசத்தின்